বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে ঘাঁটি গেড়েছে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। আসাম সীমান্তের কাছে উলফা ক্যাম্পকে সক্রিয় করতে একত্রিত হচ্ছে আইএসআই ও বাংলাদেশি অপারেটিভরা। এবার এমন দাবিকে সংবাদ প্রকাশ করেছে भारतीय संबाद इंडिया वालों, द ट्रिब्यून। हिंदुस्तानी अंतभक्तों के लिए एक और बुरी खबर है दोस्तों, और खुद इंडियन एक न्यूज पोर्टल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक बेस बनाया है, मिलिट्री बेस बनाया है चिकन नेक के बिल्कुल करीब, यानी रांगपुर जो रीजन है बांग्लादेश का और ये सिलिकोरी कॉरिडोर है उसके पास ये एक मिलिट्री बेस बनाया गया है, और उसमें पाकिस्तानी ऑफिसर और बांग्लादेशी जो मिलिट्री के टॉप के ऑफिसर हैं वहां पर आते जाते हैं, मीटिंग हो रही है। और दोस्तों इससे अब हिंदुस्तान वालों की नींदें भी उड़ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করাই আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो इंडिया का न्यूज पोर्टल है उनकी तरफ से ये दावा किया गया है, वो कहते हैं कि हमारे पास भाई एविडेंस भी हैं कि एक मिलिट्री बेस बनाया गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मी ने ये मिलकर एक बेस बनाया है, फ्रेंडशिप बेस है, और ये है बिल्कुल चिकन नेक रांगपुर रीजन बांग्लादेश वाली साइड पर। वो कह रहे हैं कि वहां पर ये मिलिट्री बेस बनाया गया है और पाकिस्तान के टॉप के ऑफिसर फिर बांग्लादेश के ऑफिसर आर्मी के वहां पर उनकी मीटिंग भी कंडक्ट होती है। कुछ नया होने जा रहा है, डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको ऑन नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, किसी को भी खुफिया सीक्रेट रखा गया है। वो कह रहे हैं कि ये बेस जो बनाया गया है, मिलिट्री बेस जो बनाया गया है, वो दोस्तों वो कह रहे हैं कि इसकी हमारे पास एविडेंस भी हैं, लो कर लो भाई बात, वो सबूत भी दे रहे हैं इंडियन। तो इसी के ऊपर दोस्तों वीडियो क्लिप है, ये पहले ये देख लेते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा 3, 2, 1 एंड क्यू। সীমান্তের কাছে ঘাঁটি গেড়েছে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। আসাম সীমান্তের কাছে উলফা ক্যাম্পকে সক্রিয় করতে একত্রিত হচ্ছে আইএসআই ও বাংলাদেশি অপারেটিভরা। এবার এমন দাবিকে সংবাদ প্রকাশ করেছে ভারতীয় সংবাদপত্র দ্য ট্রিবিউন। তবে সেই প্রতিবেদনকে সম্পূর্ণ ভুয়া বলে দাবি করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরিফ হাসান। 5 আগস্টে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন যেন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিবেশী ভারতের। বাংলাদেশ ইস্যুতে যেন উঠে পড়ে লেগেছে দেশটির রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে গণমাধ্যমগুলো। বাংলাদেশ নিয়ে দেশটির মিথ্যাচার যেন থামছেই না। এবার নতুন আরেক বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করেছে দেশটির সংবাদপত্র দ্য ট্রিবিউন। সংবাদ মাধ্যমটির দাবি, বাংলাদেশ সীমান্তে ঘাঁটি গেড়েছে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, আইএসআই ও বাংলাদেশি অপারেটিভরা আসাম সীমান্তের কাছে উলফা ক্যাম্প সক্রিয় করতে একত্রিত হচ্ছে। তবে সংবাদ মাধ্যমটির সেই প্রতিবেদন সম্পূর্ণ ভুয়া বলে দাবি করেছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। একই সঙ্গে এটাকে ভারতের মিথ্যা প্রচারণার অংশ বলছে প্রেস উইং। টপার ননস্টিক কুকওয়্যারে 5 স্তরের ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোটিং থাকায় খাবার লেগে যায় না। গত শুক্রবার নয়াদিল্লি ভিত্তিক দ্য ট্রিবিউন তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে দাবি করা হয় আইএসআই ও বাংলাদেশি অপারেটিভরা উলফা ক্যাম্প পুনরায় সক্রিয় করতে একসঙ্গে কাজ করছে। শনিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ফ্যাক্টস জানায়, বাংলাদেশের জনগণ যেদিন দুর্নীতিবাজ ও নিপীড়নকারী স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে সেদিন থেকে এ ধরনের ভুয়া সংবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এ ধরনের প্রতিবেদনে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় না এবং কোনো বিশ্বস্ত সূত্র এই কল্পকাহিনীকে সমর্থন করে না। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেদনে উল্লেখিত একমাত্র সূত্র আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, যিনি এর আগে স্পষ্টভাবে বলেছেন উলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া তার পূর্বের সামরিক কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু করতে চান বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সন্দেহ করছে বড়ুয়া শীঘ্রই মুক্তি পেতে পারেন বলে ট্রিবিউন দাবি করলেও বাস্তবে তিনি আগেই মুক্ত এবং বর্তমানে চীনে বসবাস করছেন বলে ধারণা করা হয়। ট্রিবিউনের ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, গত কয়েক মাস ধরে আসাম এবং অন্যান্য উত্তর পূর্ব রাজ্যের কাছাকাছি
বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উলফা প্রশিক্ষণ শিবির পুনরায় চালু করা হয়েছে। শেখ হাসিনার শাসনামলে এই শিবিরগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলেও জানানো হয় ওই প্রতিবেদনে। বলা হয়, বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই এই শিবিরগুলো আবার চালু করা হয়েছে। প্রেসউইংয়ের মতে এই প্রতিবেদনটি পুরোপুরি কল্পকাহিনী এবং শুধু দ্য ট্রিবিউনের সাংবাদিকদের কল্পনাতেই রয়েছে, যা অন্য কোথাও সত্য বলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है पाकिस्तान फिर बांग्लादेश और ये दो बिछड़े हुए भाई अब तिगनी का नाच नचा रहे हैं हिंदुस्तान को। जिस हिंदुस्तान ने साजिश करके दो भाइयों को अलग कर दिया था, जुदा कर दिया था, 1971 में सकूते ढाका हो गया था, और फिर एक नेचुरल जो रिलेशन होता है, याद रखिएगा, रिश्ता जो होता है एक अल्लाह ने बनाया हुआ है, एक नेचुरल जो रिलेशन होता है उसने एक ना एक दिन मिलना होता है, वापस आना होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जुलाई में जो एक रेवोल्यूशन आया उसके बाद फिर जो काया ही पलट दी और उसके बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होना दोस्तों शुरू हुए, और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, अब देखें ट्रेड के बंद दरवाजे भी खुल गए हैं, और फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन भी बेहतर इंक्रीज हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। फिर इसी तरह जो ट्रेड है वो भी ओपन हो चुकी है। और अब ये देखें किस तरह कह रहे हैं कि जी ये जो मिलिट्री बेस है इस पर ISI, वो कह रहे हैं कि वहां पर डेरे लगा रखे हैं, ISI मौजूद है, वहां पर बांग्लादेश आर्मी मौजूद है, और दोनों मिलकर वहां पर मीटिंग कंडक्ट करते हैं। यानी बांग्लादेश आर्मी भी वहां पर रहती है, पाकिस्तान आर्मी भी वहां पर रहती है। असल में बात बताऊं दोस्तों क्या है, सबसे वीक पॉइंट जो है ना हिंदुस्तान का, वो चिकन नेक है, वो सिलिकोरी कॉरिडोर है, वो रांगपुर रीजन वाला जो एरिया बनता है बांग्लादेश वाली साइड से। तो वहां पर जाकर पाकिस्तान का बैठ जाना, चाइना का साथ जाकर बैठ जाना, मेरे ख्याल में ये बड़ी परेशानी है हिंदुस्तानियों के लिए, अंत भक्तों के लिए। इसीलिए बेचारे वो हर बात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान से ये जो शिप आ रही है, कार्गो शिप आती है, जो जहाज आता है सामान लेकर, प्रोडक्ट्स लेकर, चावल लेकर, चीनी लेकर, वो कह रहे हैं कि भाई ये इसमें चावल नहीं आ रहे, इसमें बल्कि वेपन्स आ रहे हैं, राइफल आ रही है, बंदूकें आ रही हैं। भाई आपसे सवाल है, अगर राइफलें आ रही हैं तो फिर हर बांग्लादेशी के हाथ में एक एक राइफल होनी चाहिए। अगर इतना ही सामान आ गया है, वो नजर तो आती नहीं है, कहां चली गई हैं वो राइफलें? तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।